दोस्तों, इंसान की जिंदगी एक अजनीब सा सफ़र है। कभी खुशियों से भरी हुई तो कभी परेशानियों के अंधेरों में डूबी हुई। हम सब की जिंदगी में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब ऐसा महसूस होता है कि चारों तरफ बस मायूसी ही मायूसी छा गई है। ना कोई रास्ता नजर आता है, न ही कोई सहारा। कारोबार ठप हो जाता है, स्थिति बिगड़ जाती है, रिश्ते बिगड़ने लगते हैं और हालात ऐसी बन जाते हैं कि अलिफामनुदे भी जवाब दे देती है। इसी वक्त में इंसान अक्सर लोगों से मदद मांगता है, दुआएं करता है, लेकिन एक चीज जो वो भूल जाता है वो है अल्लाह का कलाम, कुरान, जो सिर्फ इबादत की किताब नहीं बल्कि जिंदगी को संवारने का, संभालने का और बदल देने का सबसे बड़ा ज़रिया अलैहिस्सलाम है। आज हम आपको जिस सूरा के बारे में बताने जा रहे हैं वो कुरान की ऐसा सूरा है जिसने न जाने कितने लोगों के बंद किस्मत के दरवाजे खोले हैं। न जाने कितने बिगड़ी हुए काम इस सूरा की बरकत से बने हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस सूरा लकमान की। एक ऐसा सूरा जो सिर्फ सुहाने से दिलों में साकौन भर देती है और पढ़ने से जिंदगी की माशनों को हल कर देती है। यह सूरा अल्लाह की तरफ से ऐसा तोहफा है जो इंसान को हिकमत, समझदारी और सच्चे रास्ते पर चलने की तालीम देती है। अगर अपने आसी अब तक दिल से नहीं साना तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ी नामत से महरूम हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस सूरा की फजीलत, असर और सुहाने का सहन तरीका बताएंगे। बस एक बार आसीदना से सुहान कर देख लेनी, आपकी किस्मत खाविद आपकी आंखों के सामने बदलती नजर आएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। तिल्क आयातुल किताबिल हकीम। हुदى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله
ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله
بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم इस सूरत में सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है शुक्रगुजारी पर, इंसानी अखलाक पर, माँ बाप के हुकूक पर और सही और गलत की पहचान पर। इसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि किस तरह इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। जो शख्स उसे दिल से सुनता और पढ़ता है, इसके अंदर न सिर्फ सब्र और शुक्र की ताकत पैदा होती है, बल्कि इसकी जिंदगी के बिगड़े हुए काम भी धीरे धीरे सुधरने लगते हैं। यह सूरत ऐसे लोगों के लिए रोशनी की किरण है जो परेशानियों में अलिफालजे चुके हैं। चाहे कारोबार में नुकसान हो, बीमारी से जूझे रहे हों या फिर रिश्ता में दरारें आ चुकी हों, इसकी तिलावत एक ऐसी दवा है जो दिल को सुकून देती है, दिमाग को सुकून देती है और हालात को बदलने की हिम्मत देती है। इसमें ऐसे अल्फाज हैं जो खुद ब खुद इंसान के दिल को मजबूर कर देते हैं कि वो अल्लाह पर यकीन रखे और सच्चे रास्ते पर चल पड़े।
कहा जाता है कि एक ताजिर शख्स जो बरसों से अपने कारोबार में नुकसान का सामना कर रहा था, उसने हर दरवाज़ा खटखटाया, बड़े बड़े तावीज़ लिए, वज़ाइफ किए, मशवरे किए, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार एक बुजुर्ग आलम ने इसे नसीहत की तो उसे रोज़ाना दिल से सुनकर और समझकर पढ़। इसने यही किया। हर रोज़ फजर की नमाज के बाद उसे सुनता, दीन से जड़ता और समझता रहा। कुछ ही हफ्तों में इसका कारोबार वापस चलने लगा, बरकत वापस आ गई और जो काम सालों से रुका हुआ था वो खुद ब खुद बनने लग गया। ऐसे ही एक और किस्सा है एक नौजवान लड़की का जो रिश्ता की अलिफाल है और जिंदगी की मायूसियों से परेशान थी। किसी ने इसे इसकी तिलावत सुनने की नसीहत दी। जब उसने दिल से इसे सुनना शुरू किया तो उसे ऐसा सुकून और हमत मिली कि उसने अपनी जिंदगी के फैसलों को सही समत में मोड़ दिया। आज वो लड़की कामयाब भी है और खुश भी। असल में ये सिर्फ दुआ वजीफा नहीं, ये एक जिंदगी का सबक है। अल्लाह ने इसमें समझाया कि हर मुश्किल वक्त के पीछे एक सबक छुपा होता है और अगर इंसान सब्र और यकीन से काम ले तो हर दरवाज़ा खुल जाता है। दोस्तों, सिर्फ सुन लेना काफ़ी नहीं होता। असल असर तब होता है जब हम दिल से यकीन और ध्यान के साथ कुरान की आयतों को सुने और समझें। इसे सुनते वक्त एक बात हमेशा याद रखें, आपका दिल अल्लाह की तरफ जड़ा हुआ हो। सबसे बेहतरीन वक्त फजर की नमाज के बाद का होता है, जब आपका दिमाग और दिल दोनों पुरसुकून होते हैं। उस वक्त उसे रोज़ाना सुने या पढ़े। सुनने से पहले नियत कर ले कि अल्लाह, मैं तेरे कलाम को समझने और उस पर अमल करने की नियत से सुन रहा हूँ। मेरी जिंदगी की मुश्किलात दूर कर, मेरे बिगड़े काम बना दे। इसमें जो बातें एक हकीम ने अपने बेटे को समझाएं, वो हर इंसान की जिंदगी के लिए नून काफशीन रहा है। अगर आप इसे 7 दिन तक मुसलसल सुने और उसके मानी पर गौर करें तो आपके अंदर यकीनन ऐसा सुकून पैदा होगा जो दुनियावी परेशानियों से आपको मजबूत बना देगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि यह न सिर्फ इबादत का जरिया है बल्कि आपकी जिंदगी में असल तरक्की, सुकून और कामयाबी का रास्ता भी है। अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह की इस किताब से जुड़ जाएं तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानियां भी खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। याद रखिए, जब इंसान अल्लाह के कलाम के साथ जुड़ जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नीचे नहीं गिरा सकती। अल्लाह जो भी ये वीडियो देख रहा है उसकी हर मुश्किल आसान कर दे। जो रास्ते बंद हो गए हैं उन्हें खोल दे। जिस दिल में मायूसी है वहां उम्मीद की रोशनी भर दे। इसकी बरकत से सबके बिगड़े हुए काम बना दे। सबको सेहत, बरकत और सुकून वाली